اساں کشمیری ساڈا دیس کشمیر. جب تک کوئی چیز پاس ہو نا تو اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا احساس کوئی چیز جدا ہوتی ہے بندے سے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے. تو ماہ رمضان گزر گیا لیکن یقین جانیے کہ جو احساس آج محسوس ہو رہا ہے اور آخری 2 ایام میں جو محسوس ہوتا ہے کہ ماہ مقدس وہ عظیم اور برکت مہینہ رب نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا کیا اور ہم نے اس کو ایسے ہی گزار دیا یا جس طرح رب کا حکم تھا، رب کے رسول کا حکم تھا کہ اس ماہ مقدس کو کس طرح تم نے گزارنا ہے، کیا ہم نے اس طرح اس ماہ کو گزارا ہے؟ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور کرنا بھی چاہیے، رب کا حکم ہے، قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اس رب سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنا محاسبہ کرو، دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. ہمیں محاسبہ کرنا ہے اس مہینے کو لے کر اور اپنی جو آنے والی زندگی ہے اور اس کا اور جو کل ہمارا آنے والا ہے. اس کل سے مراد اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جب ہم نے دوسرا سفر شروع کرنا ہے وہ مراد ہے کہ ہم نے اس ماہ مقدس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کتنا پورا کیا ہے. کیا جس طرح یہ ماہ مقدس اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں لے کر ہمارے پاس اترا تھا، ہم نے اس سے کتنا فائدہ حاصل کیا اور ہم نے اس رب کی کتنی رحمتوں اور نعمتوں کو سمیٹا ہے. یہ ہر ایک نے محاسبہ کرنا ہے اور صرف یہ کہہ دینا کہ آج جمعۃ الوداع ہے اور ماہ مقدس کا آج اختتام ہو رہا ہے، صرف یہ کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اپنا محاسبہ کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ ماہ مقدس جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ وہ عظیم اور برکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے رحمتوں کا دن رات نزول ہوتا ہے، وہ ایسا عظیم مہینہ رب نے ہمیں عطا کیا تھا کہ جس میں ایک نفر کے بدلے میں اللہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب ملتا تھا. آج وہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے. اللہ کی رحمتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ جو بھی اس رب کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور جسے رب اپنی رحمت میں لے لیتا ہے اس کا کام اتنا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. وہ ماہ مقدس آج ہم سے جدا ہو رہا ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے. ارے ہم نے محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. اللہ نے زندگی میں وہ موقع عطا کیا، وہ ماہ مقدس ہمیں ملا، ہم نے وہ مہینے کو پایا. ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہم نے گزارا ہے. ہم نے کتنے گناہوں کی معافی طلب کی ہے، ہم نے اس رب کو کتنا منایا ہے، ہم نے اس رب کے احکامات کو کتنا مانا ہے. اگر ہم نہ کر سکے تو میرے مصطفیٰ کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ لوگوں اس شخص کے لیے
पजीर हो रहा है, कुछ कड़ियों का मेहमान है माह मुक़द्दस। हमने मुहासबा करना है कि हमने इस अशरे को कैसे गुजारा है। जो जहन्नम से आजादी का अशरा था, क्या हमने उस रब को राजी किया है? क्या हमने उस रब की तरफ रुजू किया है? क्या हमने अपने गुनाहों को बख्शवाया है? क्या हम भी इस कदर मुस्तहिक ठहरे हैं कि कल क़यामत के दिन हमें जहन्नम का मोला देखना पड़े? क्या हमने उस रब को इस तरह राजी कर लिया है कि कल जहन्नम के अंदर रब हमको न फेंके, बल्कि जन्नत जिसको हमने अल्लाह ने हमारे लिए जिसको तैयार कर रखा है, हम उसके मुस्तहिक ठहरे या नहीं ठहरे? हमने उसका मुहासबा करना है। मेरे मुस्तफा करीम का ये फरमान है, आज तो माह मुक़द्दस जुदा हो रहा है। फरमाया कि जब इसकी इब्तिदा होती है, जब माह रमजान का चांद नजर आता है, इसके हर रात के अंदर अल्लाह 7,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आजादी अता फरमाता है। और जब आज की रात जिसे हम चांद रात कहते हैं, फरमाया कि जब चांद रात आती है तो उस रात के अंदर अल्लाह यकम रमजान से लेकर 30 रमजान तक जितना जहन्नमियों को अल्लाह जहन्नम से आजाद किया होता है, इतना आज की रात चांद की रात में इबादत करने से अल्लाह इतने और जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हमने ये मुहासबा करना है। कहने का मकसद ये है, माह रमजान गुजर चुका है, बार बार हमारी जिंदगी में आता है, न जाने किसकी जिंदगी होगी, माह रमजान फिर किसको नसीब होगा। हमने ये मुहासबा करना है कि हमने इस माह मुक़द्दस को कैसे गुजारा। या जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल का फरमान था, जो उसका अहकामात थे, उसके मुताबिक हमने इस माह को गुजारा है, या जिस तरह बाकी अय्याम हम 11 महीने गुजार देते हैं, हमने भी उस माह मुक़द्दस का ऐसे गुजारा। सुभान अल्लाह। मुहासबा हर एक को अपना करना चाहिए, और जब अपने गिरबान में बंदा झांके ना, तो फिर उसको अपना वो सारा नक्शा उसे याद आ जाता है। और आपका फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर, ऐ ईमान वालों उस रब से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, मुहासबा करो, देखो कि तुमने आने वाले कल के लिए क्या तैयार करके रखा है। हमारा हाल ये होता है ना कि हमारी जिंदगी के अंदर एक सोच होती है कि मैं जिंदगी के अंदर पीछे रहने वाले के लिए कुछ करके जाऊं। हमें पीछे वालों के लिए हमारा गौर फिक्र होता है, उनके लिए हम काविश करते हैं। लेकिन रब का हुक्म क्या है, ईमान वालों उस रब से डरो और पीछे जो गुजर चुका उसको छोड़ो, जो आगे कल आने वाला है उसके लिए तैयारी करो। मुहासबा करो कि तुमने उस कल के लिए क्या तैयारी करके रखी है। हालांकि हम उल्ट करते हैं, हम जब तक जिंदगी होती है हमारा यही मिशन होता है, घर अच्छा बन जाए, औलाद के लिए अच्छे ज़राए पैदा करके जाओ, औलाद के लिए कारोबार वगैरह सेट करके जाओ, औलाद के लिए सब कुछ बना के जाओ। ये यही करता रहता है बंदा, और एक वक्त आता है कि जिंदगी से खात्मा हो जाता है। और आपका कुरान क्या कहता है कि ईमान वालों डरो उस रब से, पर तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, जो कल आने वाला है आपका, उस कल से मुराद वो आखिरत की जिंदगी है। जब हमने इस दुनिया को छोड़ना है तो कल जो हमारा स्टार्ट होगा, हमने उस पहली जो मंजिल है कब्र में जानी है, उसके लिए रब ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और उसके लिए तैयारी करो कि तुमने उस कल के लिए क्या तैयारी करके रखी है। दुनिया के अंदर तो हम सब कुछ करते हैं, और दुनिया के अंदर जब तक सांस है तो लोग वफा करते हैं। आज का तो वो भी नहीं है, आज का तो वो वफा भी खत्म हो गई। लेकिन अगर हो भी तो जब तक सांस है वफा होती है, और जब सांस निकल जाए तो बंदा जब मट्टी के हवाले किया जाता है कब्र के, फिर कोई भी नहीं होता, अकेला शख्स जाता है, अकेले उसके अमाल होते हैं। रब उसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करा रहा है कि लोगों वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, गौर और फिक्र करो कि तुमने कल के लिए क्या तैयार करके रखा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हशर का दिन होगा, ये माह रमजान का महीना, हमने अपनी तौफीक और बसात के मुताबिक अपने रब की इबादत की, उसको याद किया, उसको मनाने की कोशिश की, और उसकी बारगाह की तरफ रुजू किया हमने, और हमने देखा कि माह रमजान
खुशी होती थी। सहर हो या अफ्तार हो, 5 नमाजें हो या नमाज तरावी हो, हर एक के चेहरे पे खुशी का सामान था। अल्लाह के घर आबाद थे, लोगों के कदम जो है मस्जिद की तरफ उठ रहे होते थे। अल्लाह के दिए हुए माल से सदका और खैरात किया, लोगों के दुख दर्द को महसूस किया, लोगों के दुख को अपना दुख समझा, दूसरों के खुशी को अपनी खुशी समझा, उनकी खुशियों में शरीक हुए। ये हमने सब कुछ किया, लेकिन ये हुक्म सिर्फ माह रमजान के लिए तो नहीं आता। ये हुक्म तो अहले ईमान के लिए पूरे साल के लिए होता है, पूरे साल के लिए। और अगर एक महीने के अंदर बंदा प्रैक्टिकली ये सारे अमाल करता है तो इससे ये फायदा हासिल करना चाहिए कि जिस तरह माह रमजान के अंदर हमने उस रब को राजी करने की कोशिश की है, हमने 5 नमाजें जमात के साथ मसाजिद के अंदर जाके हमने उनको अदा किया है, दिन भर हमने रोजा रखा अल्लाह की याद में, और माह रमजान के अंदर अल्लाह के दिए हुए माल में से हमने सदका और खैरात किया है, दूसरों के दुख दर्द को हमने महसूस किया है। ये सारी चीजें जब हमने माह रमजान में की है तो इनसे हमें ये फायदा हासिल होना चाहिए और इनसे ये फायदा हासिल करना चाहिए कि बाकी जो गैर रमजान है, जो बाकी 11 अय्याम हम गुजारते हैं, तो फिर उसमें भी ये नमाज फर्ज है। हमने उन महीनों के अंदर भी जमात के साथ नमाज अदा करनी है, उन 11 महीनों के अंदर भी हमने लोगों के दुख दर्द को महसूस करना है, वो 11 महीनों के अंदर भी हमने सदका और खैरात करना है, और 11 महीनों के अंदर भी लोगों के दुख दर्द को महसूस करके उनका मदारा करने की हमने कोशिश करनी है। ये सारी चीजें हमें सामने रखकर हमें अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। माह रमजान गुजर रहा है और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे को फर्ज किया, मकसद बता दिया, तो मकसद क्या था? कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, रब ने तुम पर रोजे फर्ज किए, उसकी वजह बताई, मकसद बयान फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। माह रमजान के अंदर हमने अल्लाह की रजा के लिए सजदे किए, अल्लाह की रजा के लिए हमने रोजे रखे, अल्लाह की रजा के लिए कुरान की तिलावत हुई, अल्लाह की रजा के लिए हमने नमाज तरावी को अदा किया, हमने उस रब को मना लिया है। यकीनन हम मुत्तकी हैं, हमने रब ने हमें ये तौफीक अता की है, हमने उस रब को राजी किया है, हमने सजदे किए उसके रब की बारगाह में, हमने रातों के अंदर क़याम किया है, क़याम लाइल किया है, हमने नमाज तरावी हमने अदा की है। इसको कंटिन्यू रखना है, बाकी 11 महीनों के अंदर भी हमने रब को राजी करने की कोशिश करनी है। उसका अजर क्या मिलेगा? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, कल हशर का दिन होगा तो जब बंदा रब की बारगाह में पेश किया जाएगा तो ये रोजा जो है ये रब की बारगाह में सिफारिश करेगा। वो कुरान जिसके हमने पूरे महीने तिलावत की है, माह रमजान के अंदर तरावी की सूरत में कुरान पढ़ा है, तरावी की सूरत में हमने कुरान की समाअत किया है, फरमाया कि ये कुरान रब की बारगाह में सिफारिश करेगा। रोजा अर्ज करेगा कि मौला सारी नेमतें इसके पास मौजूद थी, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक इसने तेरी रजा के लिए उस नेमतों को हाथ तक नहीं लगाया है, तेरी रजा के लिए इसने रोजा रखा है। मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। कुरान रब की बारगाह में सिफारिश करेगा कि मौला दिन भर कुरान की तिलावत करता रहा, रात को क़यामुल लैल करता रहा, माह रमजान में तरावी पढ़ता रहा, कुरान की तिलावत करता और सुनता रहा, हमारी शिफाअत इसके हक में कबूल फरमा। मेरे मुस्तफा करीम का फरमाना है कि कुरान और रोजा जब बंदे की सिफारिश रब की बारगाह में करेगा, इन दोनों की सिफारिश रब कबूल फरमाएगा। जिसके हक में सिफारिश की जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस एक को माफी अता फरमाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। और सिर्फ यही नहीं, कल हशर का दिन होगा ना, तो फरमाया कि एक शख्स को रब के बारगाह में पेश किया जाएगा और उसका जब हिसाब किताब किया जाएगा तो उसके सामने उसके नामाए अमाल में गुनाह बहुत ज्यादा है। उसका नामाए अमाल उसको जब बाएं हाथ में दिया जाएगा, फरिश्तों से हुक्म होगा कि इसको ले जाओ जहन्नम की तरफ। वो शख्स रब की बारगाह में अर्ज करेगा, जब अपने गुनाह
गुनाहों को देखेगा तो इनकार कर देगा कि मेरे ये गुनाह नहीं है। रब फरमाएगा कि हमारे पास गवाह मौजूद है। वो गवाह क्या है कि रब ज़बान पर मोहर लगा देगा। तो रब का फरमान है ना सूरह यासीन में, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत के दिन हमारे मुंह जो होंगे उन पर मोहर लग जाएगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमारे हाथ गवाही देंगे, बोलेंगे, कलाम करेंगे हमारे हाथ। व तशहदु अर्जुलुहुम, हमारे पाँव जो होंगे वो रब की बारगाह में गवाही देंगे। हमारे जिस्म का हर एक उस रब की बारगाह में गवाही देगा। बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ दुनिया में हम कमाते रहे, कसब करते रहे। रब फरमाएगा कि बंदे तू इनकार कर रहा है, हमारे पास तो गवाह है। बात करेगा कि मौला गवाह कौन से हैं? आपको दाएं बाएं देखेगा, उससे कुछ नजर नहीं आएगा, वो कहेगा वो कौन सा गवाह है? रब फरमाएगा ज़बान पे मोहर लग जाएगी, ये हाथ गवाही देंगे, ये पाँव गवाही देंगे, ये हमारी आंखें गवाही देंगी कि हम हाथों से क्या करतूत करते रहे। हमारे पाँव गवाही देंगे कि ये पाँव नेकी की तरफ चलते रहे या बदी की तरफ जाते रहे। हमारी निगाहें जो है भाई ये गवाही देंगी कि हमारी निगाह जो थी वह हक की तरफ उठती थी या बुरी चीजों को देखने के लिए उठती थी। हमारे जिस्म का एक एक जोड़ जो होगा और आपकी बारगाह में गवाही देगा। जब वो गवाही पेश करेगी सारी चीजें, ये हमारे आज़ाद बंदा बेबस हो जाएगा। हुक्म होगा कि इसको लेकर जहन्नम की तरफ चले जाओ। जहन्नम की तरफ ले जाने लगेंगे ना तो फिर उसके ये जो पलकें हैं ना ये गवाही देंगी। इनमें से एक पलक रब से मुखातब होकर कहेगी, हुजूर ने फरमाया, वो इल्तिजा करेगी, ऐ बारे इलाह, जहां बाकी अज़ान ने गवाही दी है कि इसकी ये काम थे, मैं भी इसकी ये गवाही देती हूँ कि जिंदगी में एक मर्तबा इसके दिल में खौफ खुदा आ गया था और उस खौफ खुदा की वजह से एक मर्तबा इसकी आंखों से आंसू का एक कतरा निकला था, जिसकी वजह से इसकी पलकें जो थी वो तर हो गई थी। और मेरे मुस्तफा करीम का ये फरमान है, हुजूर ने ये ऐलान फरमा दिया था कि जिसकी आंखों से पानी का एक कतरा निकल आया, वो उस एक कतरे की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाकर अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। वो पाल के आंखें से जवाब देगी कि इबारे इलाह, मेरी ये गवाही इसने कहा कि मैं कबूल फरमा। इससे जिंदगी के अंदर एक मर्तबा इसके दिल में खौफ खुदा आया। सदा जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। जिंदगी के किसी एक मोड़ पर बंदे को अपना आप सारा नजर आता है, उसके दिल में एक लम्हे के लिए खौफ खुदा आता है और उस खौफ खुदा की वजह से उसकी आंखों में पानी जरूर आ जाता है। चाहे बंदा कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जिंदगी में उसके एक पल ऐसा जरूर आता है उसकी जिंदगी में कि उसको अपना नामा आवाज जब नजर आता है ना, उसकी आंखों में वो पानी का कतरा आ जाता है। तो फरमाया कि वो पाक आके सर्च करेगी कि मेरी गवाही इसके हाथ में कबूल फरमा और उसकी वजह से इसको बख्श दे। अगर ऐसा नहीं है तो तू ऐसा कर कि मुझे इससे जुदा कर ले और इसको बेशक जहन्नम में ले जा। जब वो हमारी एक पाक गवाही देगी तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी गवाही को कबूल फरमाते हुए बंदाए मोमिन को जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हमारे आंखों से निकला हुआ पानी का एक कतरा जो है वो रब की बारगाह में रायगा नहीं जाता, रब उसको संभाल के रखता है और उसके बदले में क़यामत के दिन अल्लाह अजर अता फरमाएगा। तो माह रमजान के अंदर हमारी जो इबादत है, हमने 30 रोजे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नमाजें अदा की है, हमने कुरान की तिलावत की है, नमाज तरावी में कुरान पढ़ा है और सुना है, ये रब कैसे रद्द करेगा? अल्लाह तो एक एक नेकी का क़यामत में बदला अता फरमाएगा। फरमाया कि कल हश्र के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम को लाएगा तो जहन्नम का इतना रौब और दबदबा होगा, हर एक कांपने लगेगा। जब जहन्नम की आग को सामने पेश किया जाएगा तो लोग देखकर डर जाएंगे, तो आग का एक शोला निकलेगा तो क़यामत के दिन लोगों की तरफ बढ़ेगा। इतने में जबरील अमीन पानी का एक प्याला लेकर मुस्तफा करीम के पास हाजिर होंगे, क्योंकि वो दिन जब होगा, आप नबी
नफ्सा नफ्सी कहेगा, हर एक की जुबान पर नफ्सा नफ्सी होगी। सिर्फ मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उम्मती और उम्मती को सदा लगा रहे होंगे। तो जब वो पानी का प्याला उनको पेश किया जाएगा, जबरील अमीन कहेंगे कि इस पानी के प्याले से छींटे मारे। जब वो छींटे मारेंगे, वो आग बुझ जाएगी जहन्नम की। मेरे मुस्तफा करीम पूछेंगे कि ये कैसा पानी है, तो जवाब मिलेगा, आपके उम्मतियों के वो आंसू हैं जो खौफ खुदा की वजह से निकले। सुभान अल्लाह, जो खौफ खुदा की वजह से निकले थे, ये वो आंसू हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आंखों से आंसू का एक कतरा जहन्नम की सियाह आग को बुझा देता है। ये एक जो कतरा रब की खौफ की वजह से निकलता है, फरमाया इसकी इतनी ताकत है कि जहन्नम की आग को भी बचा के रख देती है। दुआ करें कि अल्लाह ताला माह रमजान ये जो गुजर चुका, अब इसकी कुछ घड़ियां बाकी हैं, इसके अंदर हमने जो कुछ भी किया, जुमला जो हमारी इबादतें थी, हमारे टूटे फूटे रोजे थे, कुरान की तिलावत थी, जो कुछ जिक्र अस्कार हमने किया, रब उसको दर्जा कबूलियत अता फरमाए। हमारे रोजों को अल्लाह अपने बारगाह में कबूल फरमाए और इसके तौफीक, इस माह मुक़द्दस के तौफीक, जिस तरह उस रब ने ये तौफीक अता की है, माह रमजान को हमने मसाजिद को आबाद रखा, हमने बाकी 11 महीनों के अंदर भी मसाजिद को आबाद रखा। ये होता है ना, एक बंदे को कहा जाए कि जो लोग सिगरेट नोशी ज्यादा करते हैं, उनसे कहा जाए कि बस सिगरेट छोड़ दो, वो आगे से जवाब देते हैं कि आदत है, आदत पड़ गई है और ये नहीं छूटती। तो अगर वो आदत जो कि बुरी है, उसको अच्छा तो कोई तसव्वुर नहीं करता ना, तो अगर वो आदत हमारी सिगरेट पीने की वजह से वो हम नहीं छोड़ सकते, तो इस पूरे महीने के अंदर हमने रब को याद किया है, हमने 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा की है, दिन भर हमने रोजा रखा है, अल्लाह को याद किया है, और इस एक महीने के अंदर हमारी आदत बन गई ना, तो अगर इस आदत को हम कंटिन्यू ना रखें, कल ईद का दिन हो तो मस्जिद फिर हैरान हो जाए, तो फिर बात तो नहीं होगी। ये 5 नमाजें सिर्फ रमजान में फर्ज नहीं है, पूरा साल 5 नमाजें। कुरान की तिलावत का हुक्म सिर्फ रमजान में नहीं है, पूरा साल तिलावत का हुक्म है, और इस पर अमल करने का भी हुक्म है। तो ये बताने का मकसद ये है कि अब हम चल पड़े, रास्ते की तरफ चल पड़े हैं, हमने नमाजें अदा की है, मसाजिद को आबाद किया है, इस सिलसिले को हम जारी रखें। जब इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, फिर बंदे को पता नहीं चलता कि उसके शब रोज कैसे गुजर जाते हैं। दुआ करें कि अल्लाह हमें आफत की तौफीक अता फरमाए। बाकी जो हमारे महीने हैं उनके अंदर भी अल्लाह हमें अपनी याद की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल